Let's go into exercise 1.3 question number 1 where it says express each of the number as product of its primes. So you simply have to perform prime factorization, which you have done in lower classes as well. But this question can come to you for 1 mark or MCQs. Now to make it prime factors, you first should try with 2 and then with 3, then with 5 and 7, then 11 and so on. Never skip 2 or 3 and do it directly with some higher number or something like that. And you can check out the divisibility rules in some other video on my channel. I have uploaded a video on divisibility rules. So let us start with it. The first part says 140. So let's perform the prime factorization of 140. First of all, obviously at the end we have 0, so it is divisible by 2, I get 70. Again it is divisible by 2, I get 35. Now it's not divisible by 2 nor by 3 because the sum is not divisible by 3. So let's do it by 5. This gives you 5 sevens and now 7 and then 1. Alright, so 140 comes out to be 2 squared into 5 into 7. Be in a habit of writing in the power notation because it is useful in finding out HCF and LCM. So this is our solution. Let's go on to the second part. What does it say? It says 156. So let's perform the division for prime factorization for 156. Obviously at the end we have 6, so it is divisible by 2. 2 sevens are 14 and then 2 eights are 16. Again by 2, since we have 8 at the end, 2 threes are 6. And 2 nines are 18. Now it is divisible by 3, you can see very clearly. The more you practice, the more speed you get. So prime factors of 156 are 2 squared into 3 into 13. These are prime factors of 156. Let's take up the third part, which is a bit higher number than these. And let's try it out. Now, at first it is not divisible by 2 clearly because we have 5 at the end. Now let's check out by 3. Just add them up. 5 to 7, 8, 15 and 3, 18. Yes, it is divisible by 3. 3 ones are 3, 3 twos are 6, then 7 and then 5. I hope you can do it. Now again you can see it's divisible by 3. थोड़ा क्विक होने के लिए आप सबको ना भी प्लस करें. देखिए 12 अलग से डिविजिबल है, 7 + 5 अगेन 12 हो गया, वो डिविजिबल है. तो you can break it also. 3 4s are 12, then 2s are 6 and then 5s are 15. Now 4 and 2 6 5 11. Now here we have to stop dividing by 3. I take up 5. 5 8s are 40 and then 5 5s are 25 again by 5 and I get 17. So my prime factorization is 3 squared into 5 squared into 17. Now here you may not write the last step, the way I have written here, and you may not even show this. It is not compulsory for you to show this, but we just do it because it makes it easier. अगर आप कर ही रहे हैं तो रफ में मत कीजिए, फेयर में कीजिए. हाँ, अगर आपको मालूम है प्राइम फैक्टराइजेशन वर्बली तो आप बेशक इसे शो ना करें. It will not carry marks at least in class 10th. Now let's go on to the fourth part, and it says 5005. So let us perform prime factorization of 5005. Clearly it is not divisible by 2 or by 3 and clearly it is divisible by 5. So I have 1001. Now it is not even divisible by 5, right? So then next number that I have to try is 7. So let's try by 7. 7 has a divisibility rule. I've got a very short video uploaded of less than 1 minute on divisibility rule of 7. Please go and check it out. We subtract double of 1 from 100. 100 minus 2 is 98. And 98 is divisible by 7. So this number is also divisible by 7. This gives me 7 ones are 7, 3, 7 fours are 28, 2, 7 threes are 21. Now after this it is not even divisible by 143. So the next prime number we have come across is 11. So 11 ones are 11, 11 threes are 13 and here I need to stop. So this gives me 5 into 7 into 11 into 13. Let's take up the next part, fifth part, which is 7429 and 7429 is quite a complicated number और अगर ये आपने पहले से करके ना रखा हो तो ये एग्जाम में आपका बहुत टाइम ले लेगा. सो यू मस्ट ट्राई इट. पहले से आपने NCERT ज़रूर करके रखी होनी चाहिए. तो 7429 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन ट्राई करते हैं.
अब ये सीधा जाता है हमारे पास 17 से, राइट। 17 से अगर हम इसे करेंगे तो आई गेट 17 4s are 68, then I get 6, 17 3s are 51, then I get 11, 119 and 17 7s are 119. This is the number I get. 17 के बाद अब ये आगे नहीं जाता है तो हम इसे करेंगे 19 से. 19 2s are 38 and I get 5, 19 3s are 57 and clearly 23 is again a prime number, right? So 7429 की prime factorization होगी 17 into 19 into 23. So I hope you understand this. So let's see what question number 2 is. It says find the LCM and HCF and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. Again, this is an important question. So first part says 26 and 91. We have to find out HCF and LCM of these two using prime factorization or using fundamental theorem of arithmetic. LCM तो हम ऐसे ही निकालेंगे. HCF के दोनों तरीके हैं. आप यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी यूज़ कर सकते हो जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी जब वर्ड हो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन तब आप ऐसे कर सकते हो, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर आप शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो चेकआउट कर सकते हो. सो लेट अस फर्स्ट फैक्टराइज 26. सो इट इज़ 2 into 13. You may not show the calculation because it's very easy. And then 91. 91 is 7 into 13. Now let us see how do we find out HCF. To find out HCF, what we do, we take the highest common factor. Means that number which come in both of them, which is common to both of them, that we are going to count. So first you consider 2. 2 is not there in 91, so we leave it. Then you consider 13. 13 is there in both, so I note down 13. And after that this 26 is finished. ये ख़त्म हो गया है तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है सेकेंड वाला, क्योंकि जब ये ख़त्म हो चुका है, जब इसमें है ही नहीं कुछ, तो इसमें कॉमन कैसे हो सकता है? कॉमन तो हो ही नहीं सकता. सो हमारा HCF हो गया 13, राइट. नाउ लेट अस फाइंड आउट LCM. LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स जो दोनों में से एक में भी आ गया वो हमने नोट कर लेना है. सो लेट अस नोट 2 बिकॉज इट इज़ देयर इन दिस, एंड देन वी जस्ट पुट अ डॉट ओवर दिस, लाइक जस्ट हमें निशानी हो जाए कि हम इसे नोट कर चुके हैं. देन दिस इज 13, आई नोट डाउन दिस ऑल्सो. Now this is finished, then I go to the next one. I note down 7 and then 13 is already noted. And अगर यहाँ पे डिफरेंट पावर होती फिर हम हाई पावर नोट कर लेते, बट यहाँ पे दोनों में 1 पावर ईच है तो 13 is already noted. So this is my LCM, right? मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 182. तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट, HCF and LCM. फाइंड हमने कर दिया. Then they say verify that LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और 3 नंबर्स के रिलेशन का और n नंबर्स के रिलेशन के लिए यू कैन सी अ शॉर्ट्स वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेड. सो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. ये हमको वेरीफाई करना है. सो लेट अस सी 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91. तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए कि ये सेम आता है कि नहीं. तो इन दिस केस येस, 2366 is equal to 2366, so hence verified. और अगर ये वेरीफाई नहीं हो रहा है इसका मतलब है हमने कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक करी है, या हमने LCM में मिस्टेक करी है या हमने HCF में मिस्टेक की है. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. सो लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट सेज 510 and 92. So let us first factorize 510 and 92. So 510 के फैक्टर्स बनाते हैं. तो आप फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से बना सकते हो. आपको पता है सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन अगेन 2 5 ज़ा 10, राइट. अब ये 2 पर नहीं जा रहा. 5 5 10 प्लस 2 12, सो ये 3 पर जा रहा है. 3 8s are 24 एंड 3 5s are 15. अब ये 3 पे जाना बंद हो गया. 8 + 5 13 हो गया, तो अब ये 5 से जाएगा. सो आई गेट 17. सो 510 के फैक्टर्स के आ गए 2 into 3 into 5 into 70. सिमिलरली आई वुड ट्राई टू फैक्टराइज 92, और बिल्कुल इसी तरीके से आप 92 के फैक्टर्स बना सकते हो. बहुत आसानी से आ जाएंगे. आपके पास आ जाएगा 2 into 2, उसे मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, into 23. डू यू वॉन्ट मी टू शो इट? 92, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, then 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. So 2 square into 23, we'll write it in the square, in the power notation, right?
वाई वी शैल जस्ट सी कि इसका हमें क्या फ़ायदा है. नाउ लेट अस राइट डाउन HCF. देखिए ये 2 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन में हमने इनकी छोटी पावर लेनी है. इसमें 1 पावर है, इसमें 2 पावर है, तो कॉमन कितनी पावर हो गई? 2 की 1 पावर कॉमन हो गई. अब ये 3 यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, हम नोट नहीं करेंगे. 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, हम नोट नहीं करेंगे. 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, हम नोट नहीं करेंगे. और क्योंकि ये पूरा ख़त्म हो गया है तो कॉमन होने का तो और सवाल ही नहीं उठता. तो इसमें एक टिप्स एंड ट्रिक्स में ये चीज़ भी आती है कि आप छोटे वाले से शुरू कर लो, ज़्यादा बड़े वाले से शुरू ही मत करो. अगर हम इससे शुरू कर लेते तो बस 2 पे, उसके बाद 23 इसमें है नहीं और ये काम हमारा ख़त्म हो जाता. एनीवे, सो हमारा HCF आ गया 2. अब हम लिखते हैं LCM. सबसे पहले 2 की पावर, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हम हायर पावर लिख लेंगे 2 की पावर 2. अब 3 भी नोट कर लेंगे, 5 भी नोट कर लेंगे, 17 भी नोट कर लेंगे और 23 भी नोट कर लेंगे. तो ये हो गया हमारा LCM. ठीक है, इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा LCM आएगा. एंड जस्ट टू सेव अपॉन द टाइम मल्टीप्लीकेशन इनकी आ जाएगी ये. सो दिस कम्स आउट टू बी आवर LCM. ऑलराइट, आई एम ट्राइंग टू टेक मैक्सिमम पार्ट इनटू वन स्क्रीन. तो अब हम वेरीफाई करते हैं. HCF इंटू LCM कितना हुआ? 2 इंटू 2 3 4 6 0. राइट, सो हाउ मच इट इज? It is 46920. And first number into second number, ये कितना हुआ? 510 into 92. 510 into 92, this also comes out to be 46920. And hence हमारा काम हो गया verified. So I hope this is clear to all of you. Alright. तो ये आप डिटेल कर लीजिए. इवन दाउ ये आपको MCQs में ही आए तो भी कोई बात नहीं. वी शैल बी प्रैक्टिसिंग MCQs ऑल्सो सेपरेटली. नाउ लेट अस गो ऑन टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 336 एंड 54. 336 एंड 54. सो लेट अस फर्स्ट फैक्टराइज 336. 336 को फैक्टराइज करते हैं हम. डू यू रियली वांट मी टू डू इट और यू विल डू इट योरसेल्फ? 2 1s are 2, 2 6 are 12 and then 2 8s are 16. Then again ये 2 से जाएगा और again ये 2 से जाएगा, again ये 2 से जाएगा. तो we get 2 की पावर 4. Then ये 3 से जाएगा एंड हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7. यहाँ पे आप 7 1s और 7 बेशक ना करें, यू कैन लीव इट. 54 के भी बना लेते हैं फैक्टर्स हम इसी तरह नाइसली. 27 पर जाएगा, यू नो दैट. और आगे तो आपको पता ही है कि ये 3 की 3 पावर्स आ जाएंगी. सो ये हमारा काम हो गया बहुत आसान. 54 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 का क्यूब. अब अगेन हम HCF लिखते हैं. पहले 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या नोट करेंगे? 1 नोट करेंगे. 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो क्या नोट करेंगे? 1 नोट करेंगे. 7 यहाँ पे है ही नहीं और ये ख़त्म हो गया तो हमारा काम ख़त्म हो गया. तो HCF हमारा आ गया 6. लेट अस फाइंड आउट LCM. LCM में 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो हम 4 नोट करेंगे. 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम 3 नोट करेंगे. इंटू 7 भी नोट करेंगे. अब ये खत्म हो गया तो इस पे चलते हैं. बट इसका 2 हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, 3 की पावर 3 हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, तो ये काम हमारा हो गया डन. तो हमारा LCM आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7. एंड वंस वी मल्टीप्लाइड वी गेट 3024. तो ये हो गया हमारा LCM. सो लेट अस वेरीफाई नाउ. HCF इंटू, ये इसके मार्क्स होंगे, अगर सब्जेक्टिव में आप करेंगे तो इसके मार्क्स होते हैं. HCF इंटू LCM comes out to be 3024 into 6, 6 into 3024, right? So which is equal to 18144, right? And let's find out product of the two numbers. First number into second number is equal to 336 into 54, and आप verify कर सकते हो. It also comes out to be 18144, and we say hence verified. So I hope this question is quite clear to you all. So let's go on to the next question now, and it's question number 3. Now it says find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. Now the method is prime factorization, means आपको इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं using fundamental theorem of arithmetic, right? So the first part is about 12, 15 and
21. Let us see how easy it is. First we factorize 12, you know that 2 square into 3. Then we factorize 15, you know that it is 3 into 5. And 21 is 3 into 7. Factorizations are very easy. तो आपको अगर इतनी easy है, ज़रूरी नहीं है आप एग्जाम में शो करें. There are no marks for it even in this objective exam. Right? I'm not making these videos only from the objective point of view. तो सब्जेक्टिव एग्जाम भी हो तो भी आपको पूरा शो नहीं करना है. Now let us find out HCF. इसमें 2 है बट इसमें कहीं नहीं है तो विल नॉट राइट. इसमें 3 की 1 पावर है, इसमें भी 1 पावर है, इसमें भी 1 पावर है, वी नोटेड. और ये खत्म हो गया तो हमें आगे किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें तीनों में कॉमन चाहिए. ऐसा नहीं हमें किन्हीं 2 में कॉमन चाहिए तो हमें चलेगा, नो. तो हमारा HCF आ गया 3. लेट्स राइट डाउन LCM. 2 की पावर स्क्वायर हम इसमें लिख लेंगे 2 की पावर 2. फिर 3 तीनों में 1 पावर है 3 लिख लेंगे. अब ये हो गया खत्म, हम बढ़ेंगे इसकी तरफ. इसका 3 हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, 5 रह गया, नोट कर लेंगे. ये खत्म हो गया, अब हम बढ़ेंगे इसकी तरफ. 3 हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, 7 रह गया, हम नोट कर लेंगे. सो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 विच गिव्स अस 420. ओ 420 तो बड़ी खतरनाक फिगर है. तो एलसीएम हमारा आ गया 420 एंड वी आर डन. दिस इज आवर आंसर. राइट, गॉट इट. चलिए लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट. इट सेज 17, 23 एंड 29. अब 17, 23 और 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ये तो सारे खुद ही प्राइम नंबर्स हैं. क्योंकि 17, 23 और 29 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF हो जाएगा 1 और LCM इनका क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29. यही LCM हो जाएगा विच कम्स आउट टू बी 11339. राइट. तो हमें इसमें वेरीफाई तो कुछ करना नहीं है तो ये आपका हो गया second part. And third part is about 8, 9 and 25. So let us now do 8 is equal to 2 cube, 9 is equal to 3 square and 25 is equal to 5 square. Again इनका HCF क्या हो गया? HCF इनका क्या हो गया? Again 1 क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है. और LCM क्या हो गया? LCM is 2 cube इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, सारे ही आ जाएंगे. राइट. सो इफ वी जस्ट मल्टीप्लाई इट, ये हमारे को मिल जाएगा 1800. सो दीज आर द 3 पार्ट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. यू कैन डू इट लाइक दिस. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका टू वॉच इट लेटर. राइट. इसलिए मैंने इसको सबको एक ही उसमें कर दिया है. एंड लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. It says given that HCF of 306 and 657 is 9, find LCM of this. ये हमारा क्वेश्चन है. ये ध्यान से आप देखिए कि अगर ये आपको गिवन है इसका HCF तो आप बिना गिवन के भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको गिवन है तो आपको इसी का यूज़ करना है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें. फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657. या फिर ये इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या आ जाती है कि HCF of 306 and 657 is 9. Using it, find LCM. तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. HCF into LCM is equal to first number into second number. Now HCF is 9. LCM हमें चाहिए. फर्स्ट नंबर हमारा है 306 और सेकेंड नंबर हमारा है 657. राइट. तो LCM कितना आ गया हमारे पास? आप इनको मल्टीप्लाई करने की पहले ज़रूरत नहीं है. आप पहले कैंसिल आउट कीजिए क्योंकि कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, उससे हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो ईजी हो जाएगी. तो दिस 306 को हम कैंसिल आउट करते हैं. 9 3s are 27, देन 3 is left, 9 4s are 36 इंटू 657 हमारे पास इनको कैंसिल करके आ गया. एंड द आंसर वी गेट एज 22338. दिस इज़ योर आंसर. ऑलराइट. सो दिस इज़ द रिलेशनशिप between HCF and LCM and it's very important, mind it. All right. And if you want to know relationship between 3 numbers and their HCF and LCM, I have made a separate video of shorts on it. You can just go and watch it. Thank you so much. Do not forget to subscribe and share, and happy practicing to you all. Bye bye.